Now, process of fiber into wool we will see. Processing fiber into wool means we got fiber from sheep. After getting long and thick hair from the sheep, we shaved it off. But after what? Process are there. Directly we can get sweater, directly sweater बन जाएगा या फिर directly कोई भी cloth बन जाएंगे woolen cloth. No, for that fibers of sheep is has to pass through many processes, so that we will see. There are total 6 steps, or you can say there are total 6 process. 6 step है. Now you will see in textbook, then you will get written कि oh my god ये तो बहुत hard है और बहुत messy है, but no, it's not like that. You can take screenshot also for after reading when you get time, or you can watch video again and again. Okay, I have covered in whole one board. It's not that much hard, it's easy only. You just need to remember all steps. Step 1 में क्या होगा, step 2 में क्या होगा, 3 में, 4 में, 5 में और 6 लास्ट तो पता ही है 6 क्या होगा. 6 में फाइनली we will get woolen clothes और sweater. So last one step तो सबको पता होगा कि पहले क्या होगा, हमें क्लोथ मिलेगा. और फर्स्ट स्टेप भी आपको पता होगा क्या होगा. फर्स्ट स्टेप मीन्स क्या करेंगे पहले. अगर वो फाइबर चाहिए तो फाइबर को क्या करना होगा. Your father is doing something at home. Now they must be doing at home only. What? Shaving, right? Shaving करना मतलब कि अभी बार्बर के वहाँ पे नहीं जाते हैं. बार्बर is not available in the lockdown. तो क्या shaving घर पे करते हैं ना. So that shaving means cutting off hair. So वो first step है. तो step 1 shearing. Shearing is the scientific term, means that term we have to use. We cannot over there write कि shaving, process of shaving or process of cutting hair. Cutting hair तो बहुत सारे हो, scissor से भी हो सकते हैं, but here they are using machine. So step 1 shearing. Shearing means the process of removing fleece of sheep along with the thin layer of skin. Process of removing फ्लेस मीन्स मैंने कल भी बोला था, आज भी बोला है कि फ्लेस मीन्स आप फाइबर्स बोलो, हेयर बोलो, फ्लेस बोलो, जो भी बोलो, जो चिप के बॉडी के स्किन के ऊपर का जो लेयर होता है, जो हेयर होते हैं, उसको क्या बोलेंगे. फ्लेस, हेयर और फाइबर. एवरीथिंग that every term is related to hair only, but only and only for sheep and goat, means wool yielding animal. फिर हम यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते देखो मुझे कितना फ्लीस हो गया है. We are human, okay? So that term is applicable only and only for animal, wool yielding animal. So shearing, removing fleece of sheep. Removing fleece मतलब hair sheep के remove करना along with the thin layer of skin, means small thin layer also they will remove. Only hair कैसे आएंगे, रिमूव करेंगे तो साथ में एक thin layer, that thin layer also they will remove. Now you will think oh my god, then they will not get hurt. उनको पेन नहीं होगा कि स्किन का लेयर भी निकाल देंगे, उखाड़ देंगे, ऐसे कैसे जालिम लोग है ना. बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट. शेविंग, फर्स्ट ऑफ ऑल शेयरिंग मीन्स शेविंग बाय मशीन. शेव करेंगे ड्यूरिंग हॉट वेदर. वो भी ये शेयरिंग की प्रोसेस कब होगी. शेयरिंग प्रोसेस ओनली एंड ओनली हैज बीन डन इन द हॉट वेदर. वाई हॉट वेदर? बिकॉज हॉट वेदर में अगर हम उनके हेयर निकाल देंगे तो भी उनको ठंडी लगने वाली नहीं है, बिकॉज हॉट वेदर में ठंडी नहीं होती. बट इन विंटर इफ वी विल डू then it is very difficult them to survive. They cannot survive without hair. उनको winter season में hair चाहिए. That's why I just told in our previous part कि they are just kept inside the house in the winter season. Winter season में उनको hair हो गए, छोटे हो गए या फिर बड़े हो गए, then also they cannot survive in the winter. That's why they need this hair. इसीलिए तो भगवान ने उनको hair दिए. हमें इतने hair या फिर fibers नहीं दिए. हमें जितना protection चाहिए उसके हिसाब से हमें दिए, right? So during in the hot weather only, so they can survive. But this thin layer of skin, removing of fleece of sheep along with the thin layer of skin doesn't hurt. Why it doesn't hurt? Because uppermost जो skin layer होता है, uppermost layer of the skin is dead. उनका जो uppermost skin का layer होता है वो कैसा होता है, dead. Suppose we are pinching here, then we are just feeling sensation, हमें कुछ feel होता है, pain होता है, right? But उनका जो uppermost layer होगा that is dead. That's why it doesn't hurt. Suppose if I give example, then whenever your father is shaving, तो उनको यहाँ पे पेन होता है, वो जो से चिल्लाते कि बहुत दुख रहा है, नहीं. Okay, so उनका भी ऐसा होता है. Uppermost skin layer is dead precisely in the sheep. That's why they don't get hurt. That's first one. Shearing means shaving or cutting off fleece. Removing fleece of sheep. Fleece means hair.
you can say fibers also. So shearing, cut कर लिया. Okay, after that it's sent to the scoring department. अभी scoring department, that is step 2, scoring. Scoring means washing. Directly you cannot write washing, meaning I can say in the explanation, okay, but here you have to write like stepwise only. Scoring, so scoring means washing to remove dust, grease, ऑयल और डर्ट. मतलब कि उनके जो फाइबर्स हो गए तो वो किसी किसी जगह पे घूमते हैं, राइट, शीप, और उनके बॉडी में डस्ट भी होता है. तो क्या होगा कि वंस वी गेट fiber or fleece from their body, after that we are sending into the scoring department. Process of washing to remove dust, grease and dirt, and this process can be done in tank also, but nowadays maximum industry are using machine. Now you know machinery and technology, so nowadays machinery they are using. After that one scoring means first one shearing. Shearing means cutting, cut कर लिया. Scoring मतलब वॉश करने के लिए. Why? To remove dust, dirt, grease, oil, whatever. उनके फ्लीस में जो डस्ट डर्ट होगा उसको रिमूव करने के लिए. थर्ड स्टेप और थर्ड प्रोसेस, सॉर्टिंग. इट्स नॉट शॉर्टिंग, मतलब कट करना या फिर छोटा करना नहीं. शॉर्टिंग नहीं, सॉर्टिंग. व्हाट इज दैट? सॉर्टिंग. सॉर्टिंग मीन्स सॉर्ट आउट करना. हम ऐसा बोलते हैं ना, प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर दिया, ये सॉर्ट आउट कर दो, मतलब कि उसको बाइफर्केट कर दो, उसको डिफरेंट अलग अलग कर दो कि आपका प्रॉब्लम है तो आपका सोल्यूशन खुद से ले आओ. सॉर्ट आउट करना. तो सॉर्टिंग मीन्स सेपरेशन ऑफ हेयर. सपोज कि ये वाइट हेयर है, ये ब्लैक हेयर है, तो सेपरेट तो करना होगा ना. मिक्स हेयर का तो कोई वुलन कोई स्वेटर पहनेगा या फिर कोई वुलन क्लोथ मिक्स हेयर का जो भी आए वो पहन लेंगे? नो. दैट्स व्हाई वी नीड टू सॉर्ट आउट की टेक्सचर कैसा है. कोई लॉन्ग हेयर हो गए, कोई थिन हो गए, कोई थिक हो गए. ओके, सो सॉर्ट आउट मतलब कि उसको सेपरेट करना टेक्सचर वाइज, कि इसका टेक्सचर कैसा है. इसका स्मूथ टेक्सचर है तो स्मूथ टेक्सचर वाले को अलग कर दिया, थिक टेक्सचर है तो थिक टेक्सचर वाले को अलग कर दिया. सो दैट इज सॉर्टिंग. तो फर्स्ट वन शेयरिंग, शेयरिंग देन स्कोरिंग. शेयरिंग मीन्स कट करना, शेव करना. स्कोरिंग, स्कोरिंग मतलब वॉश करना. थर्ड वन सॉर्टिंग मतलब सेपरेट करना. सेपरेशन ऑफ हेयर टेक्सचर वाइज. सो इट हैज बीन separated according to texture. उनका टेक्सचर कैसा होगा उसके हिसाब से. एंड दिस ऑल्सो कैन बी डन इन द फैक्ट्री. फोर्थ वन, अभी सेपरेट कर लिया. सेपरेट करने के बाद फिर से उसके अंदर छोटे छोटे बर्ड्स हो गए. यू वुड हैव सीन इन द योर स्वेटर कि आपका स्वेटर जो है तो उसके अंदर आप कहीं ऐसे ऐसे निकालते हो, मतलब कि छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं तो आप ऐसे ऐसे करके निकालते हो, राइट. तो दैट स्मॉल fluffy fibers. So that is cleaning of birds. Birds means small fluffy fibers. So cleaning of birds, small fluffy fibers, scoured again and dry and ready to drawn in fiber. उसको scoured again क्यों लिखा? Because here already we have seen scouring. So scoured again and dry. उसको scour करेंगे, wash करेंगे and after that they has been dry. So dry and ready to drawn into fiber. अभी वो fiber बनने के लिए उनको fiber मतलब long fibers बनाएंगे and after that woven करेंगे, उसको वॉवन करेंगे, रीलिंग करेंगे, उसको कलरिंग करेंगे. सो फॉर दैट इट्स नाउ रेडी. तो फर्स्ट वन हमने क्या किया? शेयरिंग, कटिंग किया, देन स्कोरिंग, वॉशिंग किया. सॉर्टिंग मीन्स सेपरेट किया टेक्सचर वाइज एंड अगेन स्कोरिंग. अगेन क्या किया? स्कोरिंग. बट उसका वर्ड अगेन स्कोरिंग ऐसा नहीं लिखा. क्या लिखा? क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स. मीन्स यहाँ पे अभी क्या क्लीन होगा? स्मॉल फ्लफी फाइबर, स्मॉल फाइबर्स हो गए, वही अगेन वॉश एंड ड्राई, वो वॉश हो गया और ड्राई हो गया. दैट्स व्हाई हियर क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, स्मॉल फाइबर्स. Fifth one, dyeing. अभी is ready to drawn into fiber. Now before making fiber we need to see कि कौन सी डिमांड है. ओके, कि क्या है उनका रिक्वायरमेंट क्या है. इफ दे वांट कलरिंग वुलन क्लोथ तो उसको कलर करना पड़ेगा. डाइंग मीन्स नॉट दैट डाइंग. डाइंग मीन्स कलरिंग. डाई मतलब कलर करना, डाई करना. जैसे घर पे डाई करते हैं ना हमारे ग्रैंड पेरेंट हेयर में, तो वो डाइंग, वो ब्लैक कलर का. तो डाइंग में डिफरेंट डाइंग का मतलब ये होता है कलरिंग. सो डाइंग मीन्स कलरिंग ऑफ फाइबर. कलरिंग ऑफ फाइबर्स दैट ऑलरेडी आई टोल्ड. sheep and goat have natural color black, brown and white. अभी sheep and goat का मैक्सिमम कलर नेचुरल होता है. कौन सा होता है? ब्लैक या फिर ब्राउन या फिर व्हाइट. 3 कलर्स होते हैं नेचुरल, राइट. सो अगर इफ डिमांड इज फॉर नेचुरल कलर ब्लैक, ब्राउन एंड व्हाइट, देन वी डोंट नीड टू डू डाइंग प्रोसेस. बट ऐसा तो नहीं है कि एवरीवन लव ब्लैक, ब्राउन एंड व्हाइट ओनली. नो. वुलन क्लोथ्स हो गए तो क्लोथ्स डिफरेंट कलरफुल हो गए, देन ओनली इट विल बिकम अट्रैक्टिव एंड देन ओनली पीपल मीन्स कस्टमर विल परचेस. सो डाइंग मीन्स कलरिंग ऑफ फाइबर. ओके, डाइंग हो गया. नाउ फाइनल स्टेप,
कि अभी सब कुछ हो गया, उसको वॉश कर लिया, उसको कट कर लिया, उसको फाइबर्स फ्लफी फाइबर्स को अगेन वॉश कर लिया, टेक्सचर वाइज सेपरेट कर लिया, कलर कर लिया. आफ्टर कलरिंग नाउ वन प्रोसेस ओनली लेफ्ट, दैट इज टू ड्रॉन इनटू रील. उसको रील बनाएंगे. रील बनाएंगे तो वुलन की रील बनेगी. रील यू नो वेरी वेल, रील आती है. सिक्स्थ वन रोलिंग. रोलिंग मतलब कि रोल करना. उसके फाइबर्स को रोल करेंगे और क्लोथ बनाएंगे या फिर वुलन के स्वेटर बनाएंगे, वुलन क्लोथ बनाएंगे. सो रोलिंग मीन्स स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न. पहले तो उसको स्ट्रेट करेंगे, जो यू नो वेवी होते हैं, कर्ली होते हैं, तो उसको पहले स्ट्रेट करेंगे तो ही इजी रहता है वुलन क्लोथ बनाने के लिए. तो आफ्टर दैट इट स्ट्रेटेंड, कॉम. कॉम मतलब कि हम जैसे बाल कैसे सब संवारते हैं, कॉम करते, कॉम्बिंग करते. सो उसको स्ट्रेट करेंगे, कॉम करेंगे, मतलब कि उसके अंदर अगर कोई मैस है, गुत्थियां है, देन इट विल ऑल्सो विल बी रिमूव्ड आउट. सो स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न. यार्न के अंदर रोल करेंगे. यार्न मीन्स जो थ्रेड्स आते हैं, जो रील्स आते हैं, थ्रेड या फिर आई कैन से फाइबर्स की जो पूरी की पूरी ऐसी रील आती है, वो. And longer. Now in that also two types of fiber will be there, longer and shorter. Longer fiber rolled into wool for sweater. Sweater के लिए compulsory we require longer fiber only. Sweater के लिए कैसा fiber चाहिए? We compulsory require longer fiber. So longer fiber rolled into wool for sweater and shorter fiber rolled or woven into woolen cloth. वुलन क्लोथ कोई भी अलग टाइप के बनाने होंगे, देन वी कैन दे विल यूज शॉर्टर फाइबर एंड लॉन्गर फाइबर इनटू वूल फॉर स्वेटर्स. सो फर्स्ट वन शेयरिंग, मतलब हमने कट किया, शेयरिंग के बाद स्कोरिंग. एस से पहले 3 याद रखो, उसके बाद तो इजी है, ये तो दोनों वेरी इजी. शेयरिंग मतलब कि रिमूविंग फ्लेस ऑफ द शीप, मतलब कि कट करना. आफ्टर दैट स्कोरिंग मतलब कट करने के बाद अगर वो डर्टी है तो वॉश करना. आफ्टर दैट थर्ड वन सॉर्टिंग मीन्स सेपरेशन, टेक्सचर वाइज सेपरेट करेंगे. सो शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग. Cleaning of burrs, dyeing and rolling. Cleaning of burrs मतलब small fluffy fibers again wash and again dry, so it will be ready to drawn into fiber. Dyeing means coloring and rolling means rolling into yarn. अभी longer fiber किस में roll होगे? For into wool for making sweater, and shorter fiber into also woven into woolen cloth. This all about processing fiber into wool. मतलब कि इतनी प्रोसेस के बाद हमें वुलन क्लोथ या फिर वुलन स्वेटर मिलता है या फिर हमें वुलन मिलता है रीलिंग में. अभी वो रील हम परचेस करके आ सकते हैं और घर पे भी हम उसको नीट कर सकते हैं. नीट करना मतलब गूंथ सकते हैं, उसको बना सकते हैं, गूंथना. तो दिस एवरीथिंग वाज अबाउट प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल. था ना इजी? ऐसा लग रहा था, हार्ड लग रहा था ना कि बहुत लंबा कंटेंट है एवरीथिंग. सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो, यू कैन मेक नोट्स ऑल्सो. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन 5 marks. Explain the 6 process of making fiber into wool. प्रोसेस है फाइबर इनटू वूल के लिए. सो दिस you can describe very well, you can write very well, okay, and we will meet in our next lecture. Till then, take care of yourself. Bye.